Very good morning, everyone. Today we are going to study the previous year papers for the chapter The Dual Nature of Radiation and Matter. So, firstly, we will see CBSE 2020 papers. There were, I think, 2 to 3 questions were asked from this chapter. Yes, dual nature of radiation and matter. So, first question was, I think that was 2 marks question. Photons of energies 1 electron volt and 2 electron volt are successively एक के बाद एक करके incident on a metallic surface of work function 0.5 electron volt. 0.5 electron volt is the work function for that metal surface on which the photons were incident. Work function is the minimum energy required to emit the electrons from that particular surface. The ratio of kinetic energy of most energetic photoelectron in the 2 cases will be, means the photon will transfer the energy to the surface, and according to the energy of the photons, the electrons will be emitted, and the remaining energy, remaining of what? The photon energy minus the work function will be the energy given to the electrons as kinetic energy. Alright, so let's solve it. I am solving it. Consider solution as, हमको ये फॉर्मूला पता है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन. It is h and nu. All right. So for first beam of photons and for second beam of photons, these are photon energy, means the value of h nu for first and h nu for second. So I am writing Ek for the first photon. It is equals to 1 electron volt minus work function is 0.5 electron volt. I am writing it in electron volt, so I am not changing it, changing the unit. Similarly, Ek2 for the second beam of photons, that is for 2 electron volt beam. H nu is 2 and work function is 0.5 again, because we have incident the photons on the same metallic surface. So now we want to calculate the ratio of kinetic energy. ठीक है, तो रेशियो इसका ले लो, Ek for first upon Ek for second, it is equals to 1 minus 0.5 is 0.5 and 2 minus 0.5 is 1.5. So it is 1 by 3. So 1:3 will be our answer. So okay, this was 1 marks question asked in MCQ type. Next, from 2020, write 2 main observations of photoelectric experiment which could only be explained by Einstein's photoelectric equation. Alright, I think we have discussed this question before also in our previous video. See, as we know, the Einstein photoelectric equation is this: kinetic energy E maximum, kinetic energy max is equals to h nu minus W. This is our Einstein's photoelectric equation, where W is our work function. हमने पीछे देखा वर्क फंक्शन होता क्या है, वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी फोटोन की जो इतना मिनिमम रिक्वायर्ड हो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, h न्यू नॉट. ठीक है, तो हम कह सकते हैं h न्यू माइनस h न्यू नॉट या h न्यू माइनस न्यू नॉट. अगर हमारी जो इंसिडेंट, ये उस मेटेलिक सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो न्यू नॉट है, कि वर्क फंक्शन h न्यू नॉट होता है ना, कि इतनी एनर्जी तो मिनिमम चाहिए. अगर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी होती है तो कोई एमिशन नहीं होगा, है ना.
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, और ये क्वांटिटी अगर न्यू नॉट से छोटी हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से छोटी एक फ्रीक्वेंसी के अगर हम कोई इंसिडेंट रेडिएशन डालें तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती। तो हम न्यू माइनस न्यू नॉट के केस में अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है तभी देखेंगे कि एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। व्हेन न्यू इज स्मॉलर देन न्यू नॉट देन देयर विल नॉट बी एनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और देयर विल नॉट बी एनी एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये पहली चीज थी जो उन्होंने बताई थी। एक और चीज था, आपको याद होगा हमने जो ग्राफ पढ़ा था कि E जो होता है यानी काइनेटिक एनर्जी का जो न्यू के साथ ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, वो एक लीनियर ग्राफ होता है। ठीक है, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट था दैट इज इंस्टेंटेनियस एमिशन। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही फोटोन फॉल करता है, एक फोटोन आया एक मेटल सरफेस पे, वो इंसिडेंट हुआ और उसने तुरंत एक इलेक्ट्रॉन एमिट किया एटम से। तो ये एक स्पॉन्टेनियस इफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, आइंस्टीन ने इस पूरे फिनोमेना को, जो एक वेव फिनोमेना अब तक माना जा रहा था, उसको इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल कह दिया, एटम का और फोटोन का। फोटोन को एज अ पार्टिकल ट्रीट किया, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है, और ऐसे केस में पूरी एनर्जी फोटोन अपना एटम को दे देता है और इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, और यही जो है यही स्पॉन्टेनियस एमिशन है। ठीक है, एक और चीज है, आइंस्टीन ने यह भी दिखाया कि इंटेंसिटी अगर हम लाइट की बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी नहीं इंटेंसिटी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो एमिशन और इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा एमिट होंगे तो यानी करंट की ज़्यादा मात्रा बहने लगेगी उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज asked in CBSE 2019। देखिए, हाउ इज द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड विद इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मोमेंटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से कैसे रिलेट होता है, एक एक्सप्रेशन देना है इनको। दूसरा, ड्रॉ द ग्राफ, शो द वेरिएशन ऑन अ ग्राफ। देखिए, आपको मैंने जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। ये एम वी ही तो क्या है, p है ना, h अपॉन p। सो वी कैन से लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, और वी कैन ऑल्सो से लैम्डा इंटू p इज इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट। कह सकते हैं ना, लैम्डा इंटू p इज इक्वल्स टू अ कॉन्स्टेंट। अब देखिए, ये कह रहा है कि वेरिएशन ग्राफ में शो करो। इनवर्स ग्राफ हो गया ना, देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, तो हम ये ऐसे कह सकते हैं, ये x एक्सिस बना लो, y एक्सिस x एक्सिस, x एक्सिस पे दिखा दो लैम्डा, y एक्सिस पे दिखा दो मोमेंटम p। कैसा होगा, इनवर्स ग्राफ, यही इनवर्स ग्राफ होता है, बस यही होगा हमारा वेरिएशन ग्राफ। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। एक आध क्वेश्चन कभी बड़े भी आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था, इसको भी देख लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल्स required to accelerate a proton and an alpha particle। कौन कौन सा है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को एक्सेलरेट करने की बात हो रही है। टू हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा के एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया और एक अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, और उसके एक्सेलरेशन से पार्टिकल जब चलता है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव जनरेट होती है ना, यही तो डुअल नेचर है। तो जो वेव जनरेट हुई वो दोनों में सेम वेवलेंथ की थी, ये कहा। तो ऐसे पोटेंशियल का रेशियो लगाना है कि इसमें हम कितना पोटेंशियल लगाएं, इसमें कितना लगाएं, उसका रेशियो बता दो बस।
ठीक है, तो देखते हैं। देखिए अगर मैं आपको एक फॉर्मूला लिखूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी, यहाँ तक तो समस्या नहीं है। वी क्या है? वेलोसिटी है। अब मैं थोड़ा यहाँ चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने कैपिटल वी पोटेंशियल लगाया। देखिए इस वी इसमें में अंतर, ये स्पीड है पार्टिकल की और ये पोटेंशियल जो बाहर से हम वोल्टेज लगा रहे हैं वो है। वी मैंने लगाया क्यू चार्ज के पार्टिकल पे, तो काइनेटिक एनर्जी उसने दे दिया हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर। समझ रहे हो ना? क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्यू वी क्या है? वो पोटेंशियल जो हमने लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना क्यू वी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसने क्या दिया? एनर्जी क्यू वी ट्रांसफर किया, और ये एनर्जी कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से एम वी की वैल्यू निकालो, तो एम वी कितना आ जाएगा जरा देखो, एम वी स्क्वायर क्यू वी, एम मैंने मल्टीप्लाई किया इधर, इधर हाफ, इधर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, दोनों साइड मैंने एम मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा इस टू को इधर ले जाओ, टू एम क्यू वी, यहाँ क्या बचा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो एम वी अगर मैं केवल निकालूं, रूट ले लो दोनों साइड, एम वी बन जाएगा और ये बन जाएगा रूट टू एम क्यू वी। इसी को उठा के यहाँ रख दो, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट टू एम चार्ज, और ये वी कैपिटल पोटेंशियल के फॉर्म में। मैंने क्यों किया देखा आपने? पोटेंशियल चाहिए था, यहाँ पोटेंशियल था ही नहीं, तो मैंने पोटेंशियल लाया इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहना है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों के चार्ज रखने हैं, दोनों के पोटेंशियल को V1 V2 या कुछ ऐसा मान लेना है। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमने एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे निकल सकता है। फॉर प्रोटॉन चार्ज कितना होता है? E होता है ना, V तो कांस्टेंट है V। दूसरा यहां पे V, अगर हम इस एक्सप्रेशन में Q की जगह E रख दें चार्ज, ठीक है, तो हमने कहा क्या क्या निकालना है देख लेते हैं। सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, अच्छा यहां तक तो पहुंच गए, इसकी जरूरत नहीं। क्यू ई है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन है। हम दोनों के लिए लैम्डा निकाल लें एक एक करके। लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा फॉर प्रोटॉन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों की सेम है, लैम्डा पी जो है वो लैम्डा अल्फा के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो हमने ये रख दिया H अपॉन, लैम्डा की जगह ये रख रहे हैं, लेकिन चार्ज एक बार प्रोटॉन के केस में E रखेंगे और अल्फा पार्टिकल के केस में क्या रखेंगे? कितने चार्ज होते हैं अल्फा पार्टिकल के? अल्फा पार्टिकल के केस में चार्ज 2 गुना हो जाएंगे, 2He4 है ना, अल्फा पार्टिकल 2He4। तो अब देखिए मैं वहाँ सारी वैल्यूज रख रहा हूँ, रूट टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल और पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू H अपॉन रूट टू M ऑफ प्रोटॉन, Q ऑफ प्रोटॉन, V ऑफ प्रोटॉन, दोनों बराबर है ना, बस वही रख दिया। अब H कैंसिल आउट हो गया, रूट टू कैंसिल आउट हो गया, रूट वाला फंक्शन भी हटा सकते हैं हम यहाँ से। M अल्फा Q अल्फा V अल्फा, हमको क्या चाहिए? दोनों के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो। तो आप एक काम करो, Vp बाई V अल्फा एक तरफ ले लो, Vp इधर कर दो, तो Vp बाई V अल्फा, और बाकी सारी चीज़ इधर, रूट हट चुका है। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? M अल्फा Q अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा? QP MP। अब जरा देखो यहाँ पे हम क्या क्या रख सकते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। M अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। देखो अल्फा पार्टिकल मतलब होता है 2 हीलियम 4, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। यानी इसका मास जो होता है वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो प्रोटॉन के मास का
4 गुना होता है, देखो ऊपर ये 4 है, प्रोटॉन क्या होता है 1H1, और जो चार्ज हो गया अल्फा पार्टिकल है वो कितना होगा 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो बस यही दोनों रखने जा रहे हैं हम, इंटू 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और नीचे क्या हो गया वो तो QPMP है ही, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये तो 4 दूनी 8 हो गया, 8/1, यानी ये रेशियो कितना आ गया 8:1, और यही पूछा था। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो हमें केवल क्या ध्यान रखना है कि इसको, इस एक्सप्रेशन को हमें पोटेंशियल किसी तरह लेके आना है। तो ये हमारा मेथड है, इसको आप अपने से भी एक बार ट्राई करिएगा, इजी क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। नाउ नेक्स्ट 2018, an electron and a proton are accelerated through the same potential. Which one of the two has greater value of de Broglie wavelength or less momentum? तो देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व होगा, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल है, ये कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, चार्ज दोनों के ई ही होगा, है ना, मास दोनों का थोड़ा सा अंतर रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1836 गुना ज़्यादा रहता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 1837 कितना भी रहता है, ऐसा ही कुछ रहता है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट चार्ज इज सेम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, कैसे की बात हो रही है, फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए चार्ज कितना है ई ही होगा, V इज कांस्टेंट, हमने V को सेम रखा है ना, पोटेंशियल सेम लगा रहे हैं। अभी हमने एक रिलेशन देखा, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन √2m/Q_V। सबसे पहले हमें किसकी बात करनी है, वेवलेंथ की और फिर मास की। तो पहले हम वेवलेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। V सेम है, इस फॉर्मूले में V सेम है, चार्ज सेम है, तो m के ही प्रोपोर्शनल देख ली, H और √2 तो कांस्टेंट है, सो वी कैन से लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m, कह सकते हैं ना, अगर Q सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए Q सेम होता है, V हम क्वेश्चन में सेम रख रहे हैं, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो क्या कर लेंगे, ये एक्सप्रेशन को हम एक बार प्रोटॉन के लिए लिखें, तो लैम्डा P इज प्रोपोर्शनल टू 1/√mp, ये लिख सकते हैं, एंड लैम्डा E इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू 1/√me। अब हमको एक चीज पता है, एज mp इज ग्रेटर देन me, 1837 गुना ज्यादा है ना, mp जब me से बड़ा है मैंने कहा 1/3 और 1/5 दो क्वांटिटी है, 1/3 बड़ा होगा कि 1/5, ऑब्वियसली 1/3 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, यानी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो क्वांटिटी असल में बड़ी होती है, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो यहाँ पे me छोटा है, यानी ये क्वांटिटी बड़ी होगी और ये क्वांटिटी छोटी, सो वी कैन से लैम्डा E इज ग्रेटर देन लैम्डा P, ये पहला रिलेशन आ गया। ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके लिए होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए होगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए तो फर्स्ट हो गया, हमें मोमेंटम चेक करना है, किसका मोमेंटम लेस होगा। देखो मोमेंटम के लिए लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P होता है ना, सो वी कैन से P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। अब बताओ लैम्डा किसका, अभी हमने बड़ा देखा, एज लैम्डा E इज ग्रेटर देन लैम्डा P, जिसका लैम्डा बड़ा, न्यूमरेटर दोनों में सेम है, मैंने कहा कि अल्फा के लिए अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना हो तो P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा ही लिख लें, और अल्फा पार्टिकल के लिए नहीं, क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए PP कह दिया, इट इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा P। तो अब बताओ दोनों में न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो क्वांटिटी छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा बड़ा है ना प्रोटॉन के कंपेयर में, तो ये P छोटा होगा, सो वी कैन से P ऑफ E इज स्मॉलर देन P ऑफ प्रोटॉन, ये हमारा रिजल्ट आता है। लेस मोमेंटम किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब और देख लेते हैं, 2017 के क्वेश्चन है।
describe briefly three experimentally observed features in the phenomena of photoelectric effect. देखिए ये तो theoretical part है, मैंने कई बार बता भी दिया है, तो उसको ही देख लेते हैं. देखिए क्या क्या फीचर्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के. मैं जल्दी जल्दी से बोल देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, मैंने चूंकि हम लोग थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं. पहला, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना. सेकेंड, if the frequency of the incident light is below a certain lowest frequency, that is threshold frequency, then no photoelectrons will be emitted from the metal surface. This lowest frequency is different for different metals. ये भी हमने पढ़ा था क्योंकि वो मेटल के सरफेस का वर्क फंक्शन है. नेक्स्ट, as soon as the light is incident on the surface, the photoelectrons are emitted instantly. Spontaneous emission होता है ना, तो हम कह सकते हैं टाइम लैग नहीं होता. तो यही कुछ फीचर्स हैं जो हमने बार बार पढ़े हैं. नेक्स्ट इज, यस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं 2-3 बार, 2014 में, 13 में, इस तरह से. इसको आप समझ लीजिए क्या है. एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 10 किलो वोल्ट. कितना वोल्टेज पे ऑपरेट करता है? 10 किलो वोल्ट. फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सरे वेवलेंथ ऑफ दैट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक्सरे वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की. एक्सरे की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो लेना है. तो सॉल्व करते हैं. देखिए आसान है, 1 by 1 फॉलो करिएगा. पोटेंशियल कितना लगा रहे हैं? 10 किलो वोल्ट. किलो वोल्ट मतलब 10 पावर 3, तो 10 पावर 3 और एक 10 पावर 4 वोल्ट. लिख लिया. एक्सरे के लिए क्या होता है? जो भी आप एक्सरे इलेक्ट्रॉन्स बीम्स निकल रही है ना, तो जो भी आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उससे जो वर्क हो रहा है उसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं ना, एक्सरे फोटॉन्स. लाइट है ना एक्सरे फोटॉन. आपने इतना वोल्टेज अप्लाई किया एक्सरे ट्यूब से, तो कौन सी लाइट निकली? एच न्यू. इसको लिख सकते हैं HC बाई लैम्डा. तो एक्सरे की वेवलेंथ निकाल रहे हैं फॉर एक्स रे. ठीक है, हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये वाले में देखो, HC बाई ई कैपिटल V. और ये जो EV है ये किस फॉर्म में मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा ना, तभी फोटॉन्स निकलते हैं. हीटिंग होती है तो एक्सरे ट्यूब में, तभी जाके लाइट निकलती है. यानी हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं V पोटेंशियल से, तब निकलती है लाइट. असल में होता क्या है फिर से समझ लीजिए. हो सकता है आपको एक्सरे ट्यूब के बारे में ना पता हो. आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स को हम तेजी से हिट करवाते हैं किसी सरफेस पे, और वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पे गिरते हैं, तो वहाँ से लाइट एमिट होती है, वो होते हैं फोटॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी से चल रहा है और वो पैदा कर रहा है एक्सरे फोटॉन. तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो चलेगा उसकी अपनी खुद की वेवलेंथ होगी चलने के कारण, एसोसिएटेड वेवलेंथ, और ये फोटॉन निकलेगा इसकी वेवलेंथ. तो ये एक्सरे फोटॉन की वेवलेंथ, एक्सरे की वेवलेंथ, और ये वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट करके एक्सरे फोटॉन्स निकाला है. तो दोनों का रेशियो निकालना है. देखिए बड़ा सिंपल है. ये काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ना ये पोटेंशियल, तो EV इज इक्वल्स टू हाफ mv² मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2mEV इज इक्वल्स टू, मान लो m मल्टीप्लाई किया, ये m²v², ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है, जिसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, उसको हमने लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट किया. तो ये कितनी हो जाएगी? h/mv होता है ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कर रहे हैं ये डी ब्रॉगली,
डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो क्या थी, एक्सरे की वेवलेंथ थी यहाँ तक, ठीक है, h/mv। h/mv की जगह रूट ले ले इसका, यहाँ m² v² जो भी हमने काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्ट हुआ ना, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल से हमने चलाया तेजी से, तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई एनर्जी, और उसके अकॉर्डिंग हमने m² v² निकाला, उसका रूट लिया, तो यहाँ पे 2mev लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2mev, इसको इतना ही रहने देते हैं। अब लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा निकाला, हमारा मेन मोटिव तो यही है ना, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, या उल्टा कह लें लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, एक्सरे टू दी डी ब्रॉगली निकालना था ना, इसलिए इसको नहीं, इसको। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, रेशियो लो, hc/ev, hc/ev अपॉन में h अपॉन √2mev, देख रहे हो, h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा c और √2me कैपिटल V अपॉन e कैपिटल V बाहर रूट के। अब यहाँ देखो, एक v से एक √v, यहाँ पे नीचे बचेगा √v, एक e से ये √v, ऊपर बचेगा √2m। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश जो बचेगा वो होगा c √ में 2m और नीचे में ev, ये बचेगा। अब सारी वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख देते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। ई कितना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V कितना पोटेंशियल लगाया था, 10 किलोवोल्ट यानी 10⁴। जरा सॉल्व करिए इसको, 3 × 10⁸ रहने दें, 18 हो जाएगा, 18/1.6, बाकी तो यही है, 19 ऊपर गया, 9 2 11 यानी 22 नहीं 12, -12 ऊपर बचेगा, -12 और ऊपर गया -4 -16 हो गया, -16 ये मल्टीप्लाई में, तो 3 × 10⁸, और ये -16 को जो हम आधा करेंगे रूट में अंदर ये ले लें, 18/1.6, ये बचेगा 10⁻⁻8, ये देखो दोनों कैंसिल हो। अब ये क्या हो गया 18/1.6, अब इसको लगभग 3 × 9 हम अंदर ले लेते हैं, 18 × 9/1.6, ठीक है ना। तो 16 × 6 = 18 × 6 = 84, 18 × 78, नहीं सॉल्व कर लेंगे इसको, देखते हैं कितना आ रहा है। 9 × 72 के 2 = 7, 62, ये देखिए बढ़िया मिल गया 1.6, ये देखो लगभग ये 100 टाइम्स में जा रहा है ना, तो ऑलमोस्ट 10 ले लें, तो 10 क्या है, रेशियो है ये, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश जो है ये लगभग 10 का वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, ये हमने 2017 तक के देख लिए, 2016 तक के शायद थे, 2017 तक के थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप अपने से भी लगाइए। ऑल राइट, थैंक यू।